بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دوست چاہتی تھی میں اس کے شوہر سے شادی کر لوں کیونکہ وہ مرنے والی تھی، مگر شادی کے بعد تو وہ گویا نئے سرے سے جوان ہونے لگی اور دن بدن نکھرتی گئی، جبکہ میں کمزور اور بیمار۔ پھر ایک دن مجھے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ تیری دوست تیرا حسن اور عمر پا رہی ہے اور اب اس کی جگہ تو بہت جلد مر جائے گی، اور اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو آدھی رات کے وقت اس کے جسم سے میری زندگی ایک نیا موڑ لینے جا رہی تھی، اور اس کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ کیا یہ میرا فیصلہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ اپنے ہی دوست کے سوتن بن کر جانا ایک ایسا احساس تھا جو مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کے حق پر ڈاکہ مارنے جا رہی ہوں، لیکن یہ سب ہو بھی تو اسی کی مرضی سے رہا تھا۔ میں اس کی تو آخری خواہش پوری کر رہی تھی، ورنہ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو اپنا شوہر بنا لوں۔ کچھ دن پہلے تک تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ہی دوست میرے پاس اپنے شوہر کا رشتہ لے کر آئے گی اور میرے آگے گڑ گڑائے گی، ہاتھ پاؤں جوڑے گی کہ میں اس کے شوہر سے شادی کر لوں۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہنگامے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا گئی کہ یہ گھر میں کیسا شور ہے۔ گھر میں تو میری دوست اور ہم دونوں کے شوہر کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، تو پھر یہ شور ہنگامہ کیسا ہے۔ میں تھوڑی دیر سوچتی رہی کہ مجھے کمرے سے باہر جا کر دیکھنا چاہیے یا نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میری دوست نور نے اندر آتے ہوئے مجھے کہا کہ اصل میں میرا شوہر ابھی کمرے میں آنے کو تیار نہیں، وہ میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں جانا چاہتا ہے، اور میں نے اسے ایسی بات پر لڑ رہی تھی۔ تم جانتی تو ہو کہ وہ اس شادی کے لیے کتنی مشکل سے مانا ہے، تو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بھی اسے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ میں اس کی بات سمجھ سکتی تھی، جتنی جلدی اور اچانک یہ شادی ہوئی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ ویسے بھی وہ آدمی جو میرا شوہر بن چکا تھا، اس کو مجھے قبول کرنے میں وقت تو لگنا تھا۔ وہ کیسے اپنی پہلی بیوی اور پہلی محبت کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاتا۔ میں نے اسے مطمئن کیا کہ تم فکر مت کرو، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، وہ جب تک تمہارے پاس رہنا چاہے رہ لے۔ تو وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور پانی پینے کی غرض سے کمرے سے باہر آ گئی۔ تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی خالی چادر میں لپٹا ہولہ سا باہر لان میں موجود ہے۔ میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں گھر میں گھس آیا۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ پورے لان میں چکر لگا رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کا رخ اندر کی جانب ہو جاتا، میں خوفزدہ ہو کر بھاگ آئی اور کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ مجھے خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ کیسے میں اس شادی کے لیے تیار ہوئی، وہ بھی عام دنوں جیسا ہی۔ ایک دن تھا، میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو صبح کے 10 ہی بجے تھے۔ خیر، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے دوست کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ہم دونوں 5 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگی تو میں ایک پل کو کچھ حیران سی رہ گئی کہ وہ اس وقت یہاں پر۔ خیر، میں اسے اندر لے آئی۔ وہ بہت گرم جوشی سے مجھ سے مل رہی تھی، میرا حال چال پوچھ رہی تھی، اور میں الجھن میں تھی کہ ٹھیک ہے ہماری آپس میں دوستی تھی، مگر اتنی بھی گہری نہیں کہ یوں 5 سال کے بعد وہ مجھ سے ملنے آ جاتی۔ میں نے اس کی خاطر تواضع کی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ مجھے اپنے آنے کا مقصد بتائے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور میں سوچتی ہی رہ گئی کہ یہ کیا اتنی دور سے خاص طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ گزشتہ 5 سال سے ہم ایک دوسرے سے بالکل بھی رابطے میں نہیں تھے، اور میں تو اس سے بھول بھال بھی چکی تھی، اور اچانک سے اس کا میری زندگی میں اور گھر میں چلے آنا ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہوا تھا کہ مجھے بھی اچھا لگا تھا اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ میں اسے کمرے سے باہر چھوڑنے جانے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھی رہو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میرا کمرہ اوپر چھت پر تھا، اس لیے شاید وہ یہ کہہ رہی تھی۔ خیر، میں نے اسے جانے دیا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد مجھے کام کے سلسلے میں نیچے جانا پڑا، تو اس کے ہنسنے کی آواز سن کر میں رک گئی کہ کیا وہ ابھی تک ادھر ہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ باتیں کرنے کی آوازیں تو اماں کے کمرے سے آ رہی تھی، تو کیا وہ اماں کے کمرے میں تھی؟ میں نے تھوڑا آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ دونوں یوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کی کمپنی سے لطف اندوز ہو رہے تھے
जैसे कितनी ही बिछड़ी सहेलियां हों। हालांकि मुझे नहीं याद पड़ता था कि आज तक कभी मेरी माँ से मिली भी हो। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी, लेकिन मैंने इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और ऊपर अपने कमरे में चली आई। इसने मुझे बताया था कि वो इधर पास में ही कहीं शिफ्ट हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल था कि इसे इतनी जल्दी दूसरी मुलाकात हो जाएगी। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वो फिर से मेरे घर में आ गई और मुझसे गर्मजोशी से मिलकर पुरानी बातें याद करने लगी। अब की बार मुझे कुछ तजस्सुस हुआ कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने आई है। अगर कोई मकसद भी है तो इसे बता देना चाहिए। अगर मैं पूछती तो अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल था कि शायद वो आज बता ही दे, मगर जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे रोते हुए कहने लगी कि मैं मरने वाली हूँ, मेरा मर्ज आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टरों ने मुझे 6 महीने का ही वक्त दिया है। मेरे पास अब जिंदगी बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि अपने जाने से पहले अपनी आंखों के सामने ही अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद वो किसी गलत लड़की का इंतखाब करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपनी मर्जी की दुल्हन इनके लिए लाना चाहती हूँ। वो तो मान ही नहीं रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कसम देकर इन्हें दूसरी शादी के लिए मनाया है। इसकी बातें सुनकर मुझे इसके लिए बहुत अफसोस हुआ और मैं बहुत दुखी हो गई कि जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। अभी इस बेचारे की उम्र ही क्या थी, वो मुझसे 2 या 3 साल ही बड़ी थी और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश भी थी। लेकिन किस्मत का क्या किया जा सकता है, जो इंसान के साथ वो कुछ भी कर जाती है जिसका गुमान ही नहीं किया जा सकता। मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम बस अपने इलाज पर ध्यान दो। काफ़ी देर मुझसे बातें करने के बाद वो मेरी अम्मा के कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद इन दोनों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि अभी तो मेरे साथ इधर बैठकर रो रही थी और अब अम्मा के कमरे में जाकर हंस रही है। फिर मैंने सोचा कि इस बेचारी के साथ इतना बुरा हो रहा है और ऐसे में जो वो कर रही है इसे करता रहने देना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत इस बात की भी थी कि इसका मेरी अम्मा से क्या ताल्लुक। मेरी सगी माँ भी होती तो और बात थी, लेकिन मेरी सुतेली माँ के साथ इसकी इतनी दोस्ती मुझे हरगिज भी समझ नहीं आ रही थी। जब फिर कुछ दिनों के बाद वो मुझसे मिलने आई और मैंने इससे पूछा कि आखिर तुम मेरी सुतेली माँ के साथ इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रही हो, तो कहने लगी तुम्हारे लिए ही, ताकि वो तुम्हारी शादी में कोई रुकावट खड़ी ना करे। अपनी दोस्त की बात सुनकर कश्मकश का शिकार हो गई, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी सुतेली माँ हरगिज भी इतनी जल्दी मेरी कहीं भी शादी नहीं करेंगी। रोजाना मेरे कई रिश्ते आते थे, लेकिन वो मना कर देती थी, क्योंकि अगर मैं इस घर से चली जाती तो पूरे घर का कामकाज इन्हें संभालना पड़ता। मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि मेरे जाने से घर का निजाम दरहम बरहम हो जाए, इसलिए वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हर आए रिश्ते को टाल देती थी। लेकिन मेरी दोस्त को मेरी शादी की क्या फिक्र होने लगी। मैंने इससे पूछा तो कहने लगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से शादी कर लो। ये सुनकर तो मुझे धचका लगा। मैंने दंग होकर इसे देखा और बुखलाते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रही हो। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, देखो तुम जानती तो हो मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया है और मेरे शौहर की दूसरी शादी का फैसला भी मेरा ही है, तो क्यों ना मैं इसकी शादी तुमसे करवा दूं। तुम्हारी भी अपनी सुतेली माँ के मजालिम से जान छूट जाएगी और मुझे भी फिक्र नहीं होगी कि मेरे मरने के बाद मेरे शौहर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मेरे शौहर के घर वाले चाहते हैं कि इसकी शादी वो अपने खानदान में करे, मगर वो सब लालची लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर इन लोगों में रिश्ता करे। मैं तुम्हें तो जानती हूँ कि तुम एक मुखलिस लड़की हो, तुम मेरे शौहर से शादी करने के लिए मान जाओ। इसकी बातें सुनकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। ये सच है कि मैं इसकी ज़िंदगी से बहुत मुतासिर थी। महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड पर्स, जूते, और जब भी वो आती थी गाड़ी में आती थी और अक्सर अपने घर की तस्वीरें भी दिखाती रहती थी। क्या ही आलीशान घर था। इसकी ज़िंदगी ऐसी थी कि कोई भी लड़की तमन्ना कर सकती थी कि वो इसकी जगह पर होती, लेकिन अपने ही दोस्त पर सौतन बनकर जाना भी तो एक ऐसा दाग था जिसको माशरा हरगिज भी कबूल ना करता। लेकिन इसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। मुझे कहने लगी कि तुम बस हाँ कर दो, बाकी सबको मनाना मेरा काम है। मुझे नहीं लगता था कि मेरी सुतेली माँ इस बार भी मानेगी, लेकिन नूर मेरी दोस्त ने जाने क्या चक्कर चलाया और इसे किस तरह से राजी किया कि वो खुद आकर मुझे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारी दोस्त नूर के शौहर से कर दो।
अगरचे ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दूसरी बीवी बनकर जाना, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर मैंने अभी इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो आने वाले कुछ सालों तक मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी और मेरी सुतेली अम्मा हरगिज भी मुझे इस घर से रवाना नहीं करेगी। तो बेहतर यही था कि जो मिल रहा था मैं इसे कबूल कर लेती। मैंने हाँ कर दी और इसी हाँ के नतीजे में मैं आज इस कमरे में मौजूद थी। मैं ख्यालों में गुम थी कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने देखा तो अम्मा की कॉल थी। मैं हैरान हुई कि रात के इस पहर मुझे कॉल करने की भला क्या ज़रूरत थी। वो कौन सा मेरी सगी माँ थी जो मेरी फिक्र में हलकान हो रही थी। खैर मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से इसकी घबराई हुई आवाज़ आई। मुझे कहने लगी कि तुम अभी और इसी वक्त फौरन वो घर छोड़कर वापस चली आओ। मैंने वहाँ पर तुम्हारी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तुम जल्दी अपना बैग पैक करो और वहाँ से निकलने की करो। इनके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैं चौंक गई और परेशान हो गई कि ऐसी भी क्या बात है। लेकिन वो मुझे कह रही थी कि तुम घर आओगी तो तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं समझ गई कि मेरा एक दिन भी घर से दूर जाना इनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा होगा कि कैसे अब वो मेरी जगह सब काम संभाले। इसलिए चाहती होंगी कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं हरगिज भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी। मैंने इन्हें बहाना बना दिया कि अभी आधी रात बहुत हो गई है, मैं सुबह आकर आपसे बात करूंगी, और फ़ोन बंद ही कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर से मुझे कॉल्स करें। और अगरचे मेरी ये शादी की पहली रात मुझे बता रही थी कि आने वाली ज़िंदगी मेरी कैसी हो सकती है, लेकिन फिर भी इस ज़िंदगी से तो बेहतर ही होती जो मैं अपने घर पर गुजार रही थी। सुबह जब मैं उठी तो नाश्ते की टेबल पर मैं अपनी दोस्त नूर को देखकर हैरान ही रह गई। वो बहुत फ्रेश और तरोताज़ा और निखरी निखरी सी लग रही थी। हालांकि पिछले कई दिनों से इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और इसका रंग भी बहुत डल हो गया था। मैंने सोचा शायद ये मेकअप की वजह से है और इतना ध्यान नहीं दिया। इसने मुझे नाश्ते का कहा और ख़ुद अपने शौहर को नाश्ता करवाने लगी, जबकि मेरे शौहर ने तो एक बार भी मुझ पर दूसरी नज़र नहीं डाली थी। और मेरा दिल बुरा होने लगा। इसके जाने के बाद वो भी कहीं बाहर चली गई और मैं सोचने लगी कि ये तो मुझसे ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं ज़बरदस्ती इसकी सौतन बनकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसने मुझे दोस्त के बजाय अब सौतन समझना शुरू कर दिया है। लेकिन शुक्र है कि इसने रवायती हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि वो अपने कामों में मसरूफ़ रहती और मैं अपने कामों में। मेरा शौहर आता तो इसी के कमरे में चला जाता। मैं नूर से कुछ बात वगैरह करती तो हाँ हमें जवाब दे देती। मैं इसकी कैफियत समझ सकती थी कि वो बीमार है और इसके पास दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए वो अंदर से परेशान हो गई। तो मुझे इसका रवैया बुरा नहीं मनाना चाहिए, लेकिन दिन ब दिन बजाय इसकी हालत बिगड़ने की सब संवरने लगी। तो मैं चौंक हो गई। वो तो पहले से ज़्यादा जवान लगने लगी थी और जब मैंने अपनी हालत पर गौर किया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी और मेरे चेहरे पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। मेरा रंग पीला पड़ गया था और मेरी सारी खूबसूरती तो जैसे कहीं चली ही गई थी। बाल भी रूखे फीके से हो गए थे और झड़ने लगे थे। ये सब पता नहीं क्यों हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत भी गिरी गिरी सी ही महसूस होती थी। हालांकि मैं तो यहाँ पर काम भी नहीं करती थी और खाना वगैरह भी ध्यान से खाया करती थी, लेकिन जाने ऐसा क्यों हो रहा था। एक दिन घर में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था तो मैंने सोचा कि अपने घर ही हो आती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी दोस्त नूर से जिक्र किया तो उसने मुझे मना कर दिया कि अपने घर मत जाओ, वरना तुम्हारी सुतेली माँ तुम्हें यहाँ पर दोबारा नहीं आने देगी। वो तो चाहती ही यही है तुम्हें एक दफ़ा घर चली जाओ, तुम्हें कैद कर लें। बात तो इसकी भी कुछ ठीक ही थी, लेकिन मैं घर में बहुत बोर हो रही थी। फिर मैंने इसे कहा कि चलो मैं अपने दोस्त की तरफ से ही हो आती हूँ, तो उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। अब तो मैं इतनी अमीर थी कि किसी के घर जाने से पहले तोहफा लेती, इसलिए सोचा कि बाजार से अपनी दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेती हूँ ताकि वो मुझसे मरऊब हो जाए। अभी मैं बाजार में इधर उधर ही देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र अम्मा पर पड़ी। उसने भी मुझे देख लिया था। वो भागते हुए मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर हमेशा ही बंद मिलता है। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा होगा और जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे घर का चौकीदार ही मुझे अंदर नहीं आने देता। वो मुझे कहने लगी, बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी तुम पर बहुत सख्ती की
और अपनी बेटी के मुकाबले में तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। तुम मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त नूर, इसने झूठ बोलकर ये शादी की थी। वो कोई बीमार नहीं है और ना ही इसको कैंसर है। इसने ये झूठ इसलिए बोला कि तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर सके, और मुझे उसने ये लालच दिया था कि वो जब मर जाएगी तो उसकी सारी ज्वेलरी मुझे मिल जाएगी। वो अपनी वसीयत में लिख देगी, मगर तुम्हारी शादी के कुछ घंटे के बाद ही मुझे पता चला कि वो तो झूठ बोल रही थी। इसे कोई बीमारी ही नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें कॉल करके कह रही थी कि वापस आ जाओ। अगर उसने तुमसे अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई है तो उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। ये सब सुनकर तो मैं चकरा कर रह गई कि वो क्या कह रही हैं। नूर ने झूठ बोला था, लेकिन क्यों और अम्मा को कैसे पता चला? तो वो कहने लगी, इसके मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई थी और मुझे उसने बताया था कि नूर काफ़ी अरसे से अपने शौहर की दूसरी शादी के लिए किसी मुनासिब सी लड़की की तलाश में थी, और ये भी बताया कि इसे तो ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि अगर तू माँ सच कह रही है तो फिर मुझे इससे जाकर पूछना ही होगा कि उसने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों किया। मुझे भी अम्मा की बातों पर यकीन आ रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रही थी कि वो तो कहीं से बीमार नहीं लग रही है, और ना ही मैंने एक दिन भी इसे डॉक्टर के पास जाते देखा और ना ही कोई दवा खाते देखा था। बल्कि मैं तो इसे देखकर हैरान होती थी कि वो तो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट रही हैं। अम्मा मुझे कहने लगी, मेरे साथ घर चलो, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आप जाएं, मैं बाद में आती हूँ। असल में मैं जाकर इससे पूछना चाहती थी कि इसने ऐसा क्यों किया। मैं बहुत गुस्से में वापसी के लिए रवाना हुई। इससे पहले कि मैं घर में दाखिल होती, एक बूढ़ी औरत ने मुझे इशारा किया। मैं हैरान होती हुई इसकी तरफ गई तो वो मुझे कहने लगी कि तू नूर की सौतन है ना, इससे बच कर रहे, वरना वो तेरी उम्र और तेरा हुस्न खा लेगी। मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आई तो पूछा, अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? इस बात का क्या मतलब है? तो कहने लगी कि यही मतलब है जो मैंने तुझे कहा है। तेरी वो दोस्त तेरी उम्र पा रही है, अब इसकी जगह तू मारी जाएगी, और अगर तू ऐसा नहीं चाहती तो आज रात इसके बाल काट देना। वो बूढ़ी औरत जाने कौन थी, वो तो ये कहकर चली गई, मगर मुझे सोचों में डूबा छोड़ गई। मैं घर आकर भी शशो पंज में मुबतला रही कि मैं अब अपनी दोस्त से इस बारे में सवाल करूं या नहीं, और इस बूढ़ी औरत की हदायत पर अमल करना भी चाहिए या नहीं। जाने इसने मुझे बाल काटने के लिए ही क्यों कहा था, और अगर तू ऐसा नहीं चाहती तो आज रात इसके बाल काट देना। वो बूढ़ी औरत जाने कौन थी, और वो तो ये कहकर चली गई, मगर मुझे सोचों में डूबा छोड़ गई। मैं घर आकर भी शशोपंज में मुबतला रही कि मैं अब अपनी दोस्त से इस बारे में सवाल करूं या नहीं, और इस बूढ़ी औरत की हदायत पर अमल करना भी चाहिए या नहीं। जाने इसने मुझे बाल काटने के लिए ही क्यों कहा था। आधी रात को खिड़की के पास मैं खड़ी यही सोच रही थी कि अचानक मैंने देखा कि कोई काली चादर लिए लॉन में टहल रहा है। मुझे अपनी शादी की पहली रात याद आ गई। तब भी मैंने कुछ ऐसा ही देखा था, और ये देखकर मैं शशदर रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि नूर थी। उसने आग का एक अलाव जलाया था, और जाने इसमें ऐसा क्या फेंक रही थी कि वो आग भड़कती ही जा रही थी। मैं नीचे आ गई और जाकर देखा तो आंखें बंद किए इस आग के सामने हाथ जोड़े मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी, और साथ ही अपने पास रखी छोटी छोटी हड्डियां इस आग में डाल रही थी। कोई भी देखता है तो वो ये समझ जाता कि ये कोई काला जादू ही कर रही है, क्योंकि उसने अपने बाल बिखराए हुए थे और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। अब मुझे इस बूढ़ी औरत की कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। मुझे इसकी हदायत याद आई तो मैं जल्दी से भागकर अंदर गई और कैंची लाकर इसकी चोटी काट दी। बाल कटते ही एकदम से उसने आंखें खोल दी और चीखने लगी। वो मेरी तरफ गजबनाक निगाहों से घूरने लगी। करीब ही था कि वो मुझ पर हमला कर देती कि मैं खौफजदा होकर वहां से भाग गई। रात के इस पहर पैदल भागते हुए मैं बहुत मुश्किलों से अपने घर पर पहुंची थी। घर जाकर अम्मा को सारी बात बताई तो वो भी हक्का बक्का रह गई कि वो इस तरह की निकलेगी। हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। बाद में जो सारी बात पता चली वो ये थी कि नूर को वाकई में कोई खतरनाक बीमारी नहीं थी, बल्कि वो बांझ थी और शादी के 5 साल बाद भी औलाद नहीं हो रही थी। तो इसके ससुराल वाले चाहते थे कि इसका शौहर दूसरी शादी कर ले। वो चूंकि शुरू से ही तवीज़ों वगैरह पे यकीन रखती थी,
اس لیے اسے عامل نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے تو کسی لڑکی سے اپنے شوہر کی دوسری شادی خود کروا دے اور روز رات کو اس کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر عمل کرے تو لڑکی کمزور ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کی ساری طاقت اور توانائی اور حسن تم میں منتقل ہوتا جائے گا، پھر تم ماں بن جاؤ گی۔ تو وہ یہی کرتی تھی، مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ کب میرے کمرے میں آتی اور میری ایک لٹ کاٹ کر لے جاتی تھی۔ اسی کیے گئے جادو کی وجہ سے ہی میری صحت خراب ہو رہی تھی اور وہ دن بدن جوان ہوتی جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے جادو سے مجھے مار ہی دیتی کہ شکر تھا کہ یہ سارا معاملہ وقت پر کھل گیا اور مجھے پتا چل گیا اس نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، تو جو مرضی میرے ساتھ کر لے، کون سا اس کو کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اس سارے سلسلے میں اس بڑی اماں کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، جنہوں نے پہلے اماں کو سارا سچ بتایا اور پھر مجھے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے کئی بار اس کو جادو کرتے دیکھا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے جنگل سے بچ جاؤں، میرے شوہر کو اس حرکت کے بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم تھا، اور جب اسے پتا چلا تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوا، اگر معافی مانگی اور مجھے دوبارہ بھی ساتھ لے جانے کا کہا، مگر میں ڈر گئی تھی کہ اس کی بیوی پھر سے میرے ساتھ وہی سب نہ کرے۔ مگر اب اس کے سامنے اپنی بیوی کی ساری اصلیت آ چکی تھی کہ وہ اسے جادو کے زور سے ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے طلاق دے دی اور مجھے منا کر گھر واپس لے گیا۔ نور نے اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور دوست کو بھی۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔